Hare Krishna. So this brings us to a very important shloka in Bhagavad Gita, the 34th verse of the 4th chapter, one of the pivotal shlokas of Gita, wherein Krishna explains how this transcendental knowledge should be accepted. He says, Tad vidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninah tattvadarshinaha. He says, just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. So we see Krishna says here three things that are very much important. Pranipata, Pariprashna and Seva. Pranipat means surrender. Unless one is in an inquisitive spirit, humbly inquiring, one will never be able to understand spiritual subject matter. That is the difference between normal material science, math, social study, Hindi and spiritual subject matter. हम अगर स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, हमारे किसी टीचर के साथ बनता नहीं है, हम उसको 4 गाली मार के भी अच्छे से प्रिपेयर करके 90 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं, हम पास हो जाएंगे अच्छे से. बट इन स्पिरिचुअल टर्म्स it is all dependent on the way Guru is affectionate towards us. So that's why the concept of surrender means, oh my dear spiritual master, whatever you say, I am prepared to follow. Pranipat. When one has pranipat, when one has such simple, genuine feeling of understanding Krishna, just having this feeling is not enough. One must have a genuine inquiry, परिप्रश्न. जब तक हम जिज्ञासु की तरह पूछेंगे नहीं, जिस प्रकार एक चातक पक्षी हमेशा अपनी आंखों को ऊपर लगाए रहता है कि कब बारिश होगी और बारिश से होने वाले पानी की बूंदों को पीकर मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा, उसी प्रकार एक अच्छा शिष्य, उसका कर्तव्य क्या है? परिप्रश्न. One is always humbly inquiring about absolute truth. Unless we inquire, even Jesus Christ said, knock and the doors will be opened. Yes. Seek and you shall receive. जब तक हम चाहेंगे नहीं, तब तक हमें कुछ नहीं मिलता, ना इस भौतिक जगत में, ना आध्यात्मिक जगत में. तो ज्ञान हासिल करने का सबसे प्रमुख रास्ता क्या है? परिप्रश्न. When one surrenders to the Guru, when one genuinely inquires and one gets good answers, then the next logical conclusion is there must be seva. Yes. पहले जब व्यक्ति या बच्चे गुरुकुल जाते थे, गुरुकुल जाने के बाद में गुरु के आश्रम में सीखते थे और उसके बाद गुरु दक्षिणा देते थे. आजकल और गुरु दक्षिणा देने के लिए वो आतुर होते थे. They would feel blessed that they are able to serve their spiritual master. Today's situation, education has become a business. UKG, LKG और फर्स्ट स्टैंडर्ड में 60,000 70,000 भरने पड़ते हैं. माँ पिताजी को लगता है यार क्या ये. So this is how we see Kali Yuga is developing. The three things that are supposed to be free: medicine, education and food. Vedic society means these three things are always free, they are never charged. Medicine is not charged, education is not charged and food is not charged. आप वैदिक जीवन में किसी के भी घर में जाइए, माँ ही कुछ खाना दे दे, जो घर में होगा, जो बनेगा उसमें से कुछ बचा होगा वो दे देगी. आप गुरु के पास जाइए गुरुकुल में, वो ऐसे नहीं बोलेगा तू अभी 75,000 भर तभी मैं तेरे को एडमिशन दूंगा. नहीं, he will see the qualification of the student depending on guna and karma and will admit the student. उसके बाद में अगर गुरु दक्षिणा जो देनी है जैसे देनी है,
Similarly, Vaidya, yes, medicine, it was never charged. Yes, इसलिए हम देखते हैं कि when we charge, we are making it business. And when we make something into business, then the concept of welfare that is supposed to be, कोई बिजनेस वेलफेयर के लिए नहीं करता, बिजनेस हमेशा प्रॉफिट के लिए होता है, कोई बिजनेस वेलफेयर के लिए नहीं होता। तो हम जब अपनी मेडिसिनल प्रैक्टिस, एजुकेशनल प्रैक्टिस को बिजनेस बनाएंगे, वो तो नेचुरली वैदिक जीवन के खिलाफ है। सो फूड, मेडिसिन एंड एजुकेशन, ये जहां चार्जेबल हो गए वो कलयुग है। वैदिक जीवन में ये तीनों फ्री हैं। सो जब एजुकेशन फ्री में मिलता है, नेचुरली अ स्टूडेंट वांट्स टू रेसिप्रोकेट, सेवा, वो सेवा करता है। सो इस प्रकार से हम देखते हैं प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ज्ञानी तत्वदर्शी लोग आपके प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा से प्रवृत्त हो करके दे विल गिव यू उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वन शुड अप्रोच अ तत्वदर्शी, यस, वन शुड अप्रोच अ रियलाइज्ड स्पिरिचुअल मास्टर। दैट इज द वे वन गेन्स नॉलेज। हम देखते हैं यहां पर भी, इस भौतिक जगत में भी, अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो मैं सब्जी मंडी में जाकर के ठेले वाले से नहीं पूछता भाई आज फिजिक्स कैसे मैं सीखूं, नहीं। अगर मुझे मेडिसिन सीखना है, मैं किसी सीए के पास जाकर नहीं बोलता सर एनाटॉमी का आपको क्या पता है। हर सब्जेक्ट को सिखाने वाले एक तज्ञ व्यक्ति हैं, वो तज्ञ व्यक्ति ही हमें सिखाएंगे। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खेरा हमको आके कुछ भी नहीं बोल सकता। लेकिन जब भगवत गीता, भागवत या अध्यात्म दर्शन की बात आती है, हर किसी के पास अपना 2 घंटे का लेक्चर तैयार है। मुझे क्या लगता है आत्मा के बारे में, अरे आपको क्या लगता है आत्मा के बारे में, हाउ डज इट मैटर, इट इज एज गुड एज मैं डॉक्टर हूं और बैलेंस शीट कैसे फाइल करना है इसके ऊपर मैं 2 घंटे का लेक्चर दे रहा हूं। आपको क्या लगता है बैलेंस शीट और जीएसटी फाइलिंग के बारे में, अरे डॉक्टर को क्या पता है, he has never studied, he has never been through. Yes, विडंबना हमारे भारत की ऐसी है, अगर हम सब्जी मंडी में जाके बोलेंगे भाई आपको पता है बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है, वो बोलेगा भैया जी नहीं पता, आप हमको आलू चावल दाल आटे का भाव पता है। आप इंजीनियर के पास जाके बोलेंगे सर हमको हमारा क्या हार्ट ब्लॉकेज निकलवाना है, आप कुछ कर सकते हैं, वो बोलेगा नहीं जी हम कुछ नहीं कर सकते। आप डॉक्टर के पास जाके बोलेंगे सर हमारे पास 1 करोड़ रुपए है, क्या आप हमारी बिल्डिंग बना के दे सकते हैं, वो बोलेगा नहीं भाई मैं नहीं बना के दे सकता। सो इन मटीरियल स्फीयर एवरीवन विल एडमिट दैट आई डोंट नो। इन स्पिरिचुअल स्फीयर नोबडी एडमिट्स आई डोंट नो, हर कोई अपना राग आलापता है। यस, सो हु इज अ तत्वदर्शी, हु इज अ तत्वदर्शी, शास्त्र स्टिल वेरी वेरी परफेक्टली, यस, शास्त्र से तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत। अगर हमें विज्ञान लेना है, हमें गुरु के पास जाना ही होगा। कौन है वो गुरु? समीत पाणि ही, जिसने वेदों का ज्ञान पूरी तरह से घोंट के पी लिया है। कैसे? श्रोत्रियम, अपने गुरु से सुन करके उसने वेदों का ज्ञान घोंट लिया है। केवल वेदों का ज्ञान हासिल कर लिया, इतना ही नहीं, ब्रह्मनिष्ठम, उस ज्ञान का पालन करके he has realized knowledge, not only bookish knowledge. Yes. So समीत पाणिहि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हम देखते हैं, हमने 2-4 श्लोक पहले भी ये कहा था, यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथितः ही अर्थ प्रकाश्यन्ते महात्मनः। जिस व्यक्ति का अपने गुरु के ऊपर उतना ही विश्वास, उतनी ही श्रद्धा है जितनी भगवान के ऊपर है, ऐसे व्यक्ति के लिए वेद अपने सारे सगर्भ सार खोल देते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हु इज अ तत्वदर्शी। फर्स्ट वी गेट अ तत्वदर्शी एंड देन
we surrender our lives, we have humble inquiries, and in that humble state of mind, when we serve a realized spiritual master, that is where we have essence and perfection of spiritual knowledge and existence. Thank you very much. Hare Krishna.